Namaste, everyone. Success Tales welcome you all to another lovely episode of our popular segment, Gems of Uttarakhand. And today we have with us our very own Uttarakhandi artist, जिन्होंने इस साल की सबसे बेहतरीन and popular movie कश्मीर फाइल्स में स्क्वाड्रन लीडर शहीद रवि खन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. Today we also have Ashima, our co-founder, who will join me in welcoming Sir. Please welcome the very humble and a thorough gentleman, Mr. Navneet Gerola on Success Tales. Welcome, sir. Welcome, Thank you sir. so much, Sugandha ma'am, Ashima, Nitesh, and the Success Tale teams. And it is an honor for me to be a part of this wonderful session. Thank you so much for inviting me. Yes, sir. Hailing from Uttarakhand, Navneet Gerola is an eminent cinema and theatre artist, anchor, and a radio presenter. Sir, you have been doing theatre since 1998 in the capacity of an actor and director. आपने 25 वर्षों से देहरादून रंगमंच में अपनी खास पहचान बनाई है. When did you realize that you were born for theatre and cinema? If I say it's in legacy, because my father, Shri Prasad Gerola ji, used to be an eminent theatre artist of Uttarakhand. And from my childhood days, I used to visit with him to the rehearsal places, and बहुत अच्छा लगता था मुझे. And I used to be a very sincere little boy who accompanying his father to the rehearsals and very quietly watching all the rehearsals, all the activities of the theatre taking place. So I think that inculcated in me the love for theatre. Although it took a very long time for me to be on stage, maybe in 1996, and I had been visiting with my father when I was, say, 11 or 12. But yes, I should say that due to my father, I was in theatre and still I am there. Great, sir. And you have worked with Tigmanshu Dhulia and late Irfan Khan in Pan Singh Tomar, Raag Desh, Dam Laga Ke Haisha, Badhai Do, PM Modi and Little Baby. जैसी popular movies में आपने काम किया है. So how did Kashmir Files happen? I'm very lucky and I feel honored that I am a part of this film, which has become an anthem and revolution all over the world, all over the globe, especially in India. Yeah, I had been doing theatre for a very long time. Cinema में मैं करता रहता था. Pan Singh Tomar happened in 2012. So Tigmanshu Dhulia जी ने एक ऑडिशन किया था. वो देहरादून में उत्तराखंड में आकर के कुछ फिल्म बनाना चाहते थे. तो लोकल, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें देहरादून में शूट होनी थी, रुड़की में शूट होनी थी, आर्मी का बैकग्राउंड था, इनिशियल जो फर्स्ट हाफ फिल्म का था, तो उनमें उनको एक यंग ऑफिसर की जरूरत थी और उनको वो चाहते थे कि थिएटर का कोई बंदा उस काम को करे. तो ऑडिशंस हुए थे, एक रैंडम ऑडिशंस हुए थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन जो मैंने दिया था थिएटर करने के बाद. और एक हमारे मित्र थे, वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा कि भाई तिग्मांशु धुलिया जी ऐसे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें ऑडिशन आप दे दीजिए, आप थोड़े से यंग भी लगते हैं और आर्मी ऑफिसर की तरह भी आप लगते हैं. तो लकीली थिएटर तो मैं करता ही था, तो फिर मैंने वो ऑडिशन दिया और लकीली बाय गॉड ग्रेस मैं उसमें सेलेक्ट हुआ. सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई फील सो फॉर्चुनेट कि पान सिंह तोमर इतनी बड़ी हिट बन गई. इरफान खान सर के साथ काम करना हर किसी आर्टिस्ट का ड्रीम होता है. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पहली ही बड़ी फिल्म में, हालांकि उससे पहले मैंने टेलीविजन और वो सब किया था, बट एक सिनेमा में सेलुलाइट स्क्रीन पे बड़ा दिखना, तिग्मांशु धुलिया सर के साथ दिखना, और वो भी इरफान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना, और उसके बाद वो फिल्म हिस्ट्री बनी, उसको नेशनल अवार्ड मिले, तो वो मेरी जो स्टार्ट थी वो बहुत अच्छी हो गई थी. और उसके बाद तमाम फिल्में मिली, और फिर क्योंकि जो यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर जो देहरादून के होते हैं, फिर उनसे लिंक्स बने, और फिर ऐसी तरीके से कश्मीर फाइल के टाइम पे भी कि विवेक अग्निहोत्री जी कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म ऐसा बनाना चाहते हैं. फिर ऑडिशंस हुए, तो मैंने ऑडिशन मेरा सच नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ एक फोटो भेजा था. तो फोटो देख करके और इंट्रो देख करके उन्होंने बोला था कि दिस गाय विल प्ले स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना. तो इस तरीके से ये चीजें मिलती चली गई. वाओ सर. सो कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के दौरान अपने कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस शेयर करें सर हमारे व्यूअर्स के साथ. बहुत सारी मेमोरीज हैं कश्मीर फाइल्स के दौरान, क्योंकि मेरी 4 दिन की शूटिंग थी, और मैं बहुत लकी अपने को मानता हूँ कि 4 दिन की शूटिंग इसलिए भी थी क्योंकि एक दिन हम लोग गए, मिथुन चक्रवर्ती सर के साथ मेरा सीन था, आपने देखा भी होगा फिल्म में, वो छोटा सा एक ग्लिम्स था. जी सर. एंड मिथुन सर इज सच अ डायनामिक एक्टर एंड वंडरफुल पर्सन, एंड
such a committed actor कि he was not keeping well that time. आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि he was not keeping Yes. well. Beside that कि वो शूट पे आते थे और उनको गैस्ट्रो का कुछ दिक्कत चल रहा था, लेकिन still he used to manage it. But एक दिन ऐसा हुआ कि वो आए और शूट पे आ गए थे, हम लोग सब तैयार होके खड़े थे, but he could not shoot that day. तो एक दिन तो फिर हम लोग पूरा का पूरा जो है उनकी शायद अभी थोड़ी, उन्होंने कहा कि होगी आई विल रिकवर इन 1 or 2 hours, बट दैट कुड नॉट हैपन. तो वो पूरा दिन शूट नहीं हो पाया, इसलिए 4 दिन हो गए. बट यस, 3 दिन बाकी हम लोगों ने काम किया. एंड शूटिंग का जैसा आपने विवेक सर के तमाम इंटरव्यूज भी पढ़े होंगे कि इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू शूट कश्मीर फाइल, स्पेशली द काइंड ऑफ मटेरियल, द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन इट वाज कैरिंग. And it was an intense atmosphere all the time, and that too happened with my shoot also. When I was shooting, the way Vivek sir briefed me about the shot, this is a very intense thing, and you might have been very young boy at that time, but still आपको महसूस करना होगा चीजों को कि स्क्वाड लीडर. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया रवि खन्ना जी के बारे में. मुझे लगा कि रवि खन्ना जी शायद ऐसे ही कुछ होंगे, आतंकवादी घटना घटी होगी. बट जब मैंने गूगल किया, then I came to know कि squadron leader Ravi Khanna was one of the biggest officer in Indian Air Force, and I feel so honored कि ये रोल मुझे दिया जा रहा है. तो नर्वसनेस वहीं से शुरू हो गई थी. And when the shoot started, और इतना इंटेंस शूट है, if you have seen the film कि जिस तरीके से वो आते हैं और वहां पर उन पे अटैक होता है. और सुगंधा मैम, उस सीन के बाद भी जब हम शूट कर रहे थे तो the scene was so intense कि जब हम लोगों को, जब वो सीन था कि जब हम शूट होकर के नीचे गिर गए हैं और पूरा ब्लड शेड वहां पर हो गया है. एंड वी वर शूटिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, राइट. और मसूरी में हम लोग शूट कर रहे थे, लाल टिब्बा ऊपर. इतना जबरदस्त ठंड होती है, फर्श बिल्कुल ठंडा होता है. बिल्कुल. एंड आफ्टर द शूट जब डायरेक्टर ने बोला कि कट, एंड इट वाज सच एन इंटेंस मोमेंट कि हम लोग, एवरीबॉडी वाज साइलेंस फॉर 2-3 minutes. वी वर लाइंग देयर. कट होने के बाद भी हमको उठना था, लेकिन we could not get up. Nobody could get up. You know, that the trauma कि ये क्या हो गया, as if the real Air Force officers were lying there. And that was just इस तरह से बहुत सारे मोमेंट्स इस तरह के हैं कि जब आप शूट करते हैं तो आप बहुत वो इमोशनल हो जाते हैं. अनुपम के साथ भी वहां पर बैठे हुए थे, तो वो भी जब उन्होंने शूट देखा तो वो दूर से बैठ करके जब शूट, तो वो उधर चले गए स्क्रॉल करने के लिए कि he could not see. तो इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लवली मोमेंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं. And that is the reason कि Kashmir File is a history now. Right, and sir. the way it has been presented. Thanks. हम as a viewer, आपको जो हमने स्क्रीन पे देखा, it was such a moment of pride, sir. It was Thank you. एक तो Thank you. मैं समझ सकती हूँ कि एज अ व्यूअर जब हमारे ही गूज बम्स आ गए थे सर उस सीन को देख के, हम ही सब इतना इमोशनल और वो हो गए थे. सो आई कैन वी कैन डेफिनेटली इमेजिन कि एज एन एक्टर उस कैरेक्टर में ढलना एंड देन कितना इंटेंस, कितना हार्ट रेंचिंग रहा होगा सर वो. बट wonderfully delivered, sir. Wonderfully delivered, and we are so proud of you for that, sir. Thank you so much. I feel honored. Thank you. Yes, sir. सर, धरातल संस्था की ओर से आपको पॉपुलर मूवी कश्मीर फाइल्स के अभिनय के लिए रिसेंटली सम्मानित किया गया है. पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप इस अवार्ड के बारे में हमें कुछ बताइए. देखिए, धरातल संस्था बहुत लंबे समय से जो संस्कृति कर्मी हैं उन लोगों को सम्मानित करती है. डॉक्टर अतुल शर्मा जी, क्योंकि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो उस संस्था के संस्थापक हैं और वो चलाते हैं उस संस्था को. एंड बहुत सारे बुद्धिजीवी, राज्य से पहले बहुत सारे जिसे कहते हैं इंटेलेक्ट, और जो लोगों का साहित्य में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है, उन लोगों को वो लोग सम्मानित करते हैं. और जब उन्होंने कहा कि नवनीत जी आपको भी हम इसके लिए सम्मानित करेंगे, तो फिर मुझे लगा कि मैं शायद इस अवार्ड के लायक नहीं हूँ और इस सम्मान के लायक नहीं हूँ, कि मैं बहुत एक अदना सा छोटा सा कलाकार हूँ और अभी मुझे, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और बहुत सारा काम करना है. बट ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे चुना और मुझे अवार्ड दिया, तो मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ और ये मेरे लिए सम्मान की बात है. ग्रेट सर. एंड आपने पार्ले जी, वीवो, पेटीएम जैसे ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया है. एंड आप दूरदर्शन देहरादून के लिए टॉक शो होस्ट करते हैं. एक्टर होने के अलावा आप रेडियो जिंदगी 90.8 FM में कंटेंट एडिटर एंड रेडियो प्रेजेंटर भी हैं. सो रेडियो से आपके लगाव के बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करें.
रेडियो से, यस, रेडियो से लगाव मेरा बचपन से ही है, और आई हैव अ गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना, और पुराने गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि जब मैं रेडियो सुनता, तो इच्छा भी मेरी ये थी कि मैं रेडियो में कभी कुछ बात भी करूं। और जैसा मैंने कहा कि थिएटर में, क्योंकि मैं लगातार काम करता रहता था, और जो थिएटर के लोग होते हैं उनका ऑटोमेटिकली रेडियो की तरफ रुझाव बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंटेंट, जो मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट आप रेडियो में सुनते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द कंटेंट यू आर लिसनिंग और व्यूइंग इन टेलीविजन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे को ऐसा लगता है। राइट। तो रेडियो में बहुत सारे चीजें जो जिस तरह से आती हैं, और जो उसकी एक अनसर्टेनिटी है कि अब कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, तो वो तमाम चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बचपन से। और जैसा ऊपर वाले का हमेशा मेरे ऊपर बहुत करम रहा है कि जो जो चीजें मैंने चाही वो मुझे मिलती चली गई, और टच वुड और अभी जो है, जैसे मैंने रेडियो की तरफ मुझे जब रुझान हुआ, तो फिर जिस तरीके से रेडियो जिंदगी जब शुरू हुआ, तो फिर हमने भी उसमें ऑडिशन दिया, और लकीली हम लोग सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद क्योंकि मैं थिएटर, सिनेमा, वॉइस ओवर लगातार करता रहता था, हम्म। तो एज अ कंटेंट मैं रेडियो जिंदगी के साथ काम कर रहा हूँ, और ये सिलसिला तब से जारी है। और अच्छा लगता है मुझे कि रेडियो जिंदगी पे टॉक शोज होस्ट करना। तो इस तरीके से चीजें आगे चल रही हैं। Right, ग्रेट सर। sir. Sir, according to you, how is Uttarakhand cinema and theatre evolving? And as a representative of Uttarakhand, what are your views and opinions on Uttarakhand film industry? And what are your expectations from the government as a part of cinema and theatre fraternity? So, Of late, Uttarakhand cinema and Uttarakhand film industry has been shaping very well, especially the regional cinema, the kind of regional cinema which is being prepared, which is being developed. And now we are into a web series. I came to know that will be having the regional web series as well, and it's a very good sign. And the artists are very much inculcated in bringing up all the cultures of Uttarakhand, be it Jaunsar, be it Garhwal, Kumaon, or the remote areas of Uttarakhand. It's a very good sign. And yes, luckily, many shoots have been happening in Uttarakhand since the last 5 years, and that's a very good sign. And lot of the artists are getting good work and important roles in the cinema, and not only in field of acting, all the things which are associated with shooting, be it logistics, be it catering, be it hotel industry, be it costumes, be it some other designing, art designing, sabhi ko kaam right. milta hai. So all the artists are getting employment, and that is a very good sign. And yes, as far as the government is concerned, of many state governments are doing fascinating work, especially in Uttar Pradesh, the Madhya Pradesh. A lot of shoot is being done in Bhopal and in Lucknow because of the policies of the government and the single window system, where all the Okay. filmmakers are getting everything at a single door. So That's that's a very good sign. And the policies maker of even Uttarakhand government is doing a great job in shaping all the things in line. And definitely, yes, the effectively single window system would help in shaping a good shooting scenario in Uttarakhand. Great, sir. Nice to hear that, sir. So, sir, like, what are your future plans? And अपने future projects के बारे में कुछ बताइए, sir. Future plan, definitely, yes. I love to work for radio. मुझे रेडियो बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है, और हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। तो रेडियो के साथ तो मेरा एसोसिएशन हमेशा रहेगा। As far as the shooting is concerned, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। अभी मैं कुछ शूट करके आ चुका हूँ। द मोमेंट दे विल बी आउट, आपको पता चल जाएगा। नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट है, एक दो सिनेमा मैंने शूट किया है, और अभी कुछ ऑडिशंस भी हमने दिए हैं, और कुछ बातें भी चल रही हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट यस अभी कुछ बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीजें नवनीत के द्वारा देखने को मिलेंगी। ग्रेट सर। सो सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे व्यूअर्स या फिर करंट जनरेशन जो अपना करियर आर्टिस्ट या इस तरफ को ले जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म में ये कहता हूँ, और जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट भी करता हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मैं यही उनसे कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट इन लाइफ।
ये right. आपको क्लियर होना चाहिए। और खास तौर से जो युवा है, युवा से मेरा मतलब है कि द बॉय हु इज 18+, अब वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18+ जो भी यूथ है, वो he is mature enough to decide what he is going to do in life and the way he will proceed to achieve that height. तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, चाहे कोई और करियर आप बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, शिद्दत से आपको काम करना है, सिंसियरिटी होनी बेहद बेहद जरूरी है, और हार्ड वर्क तो साथ में चलता ही है, लेकिन जब आप सिंसियर और ऑनेस्ट होंगे अपने काम के प्रति, तो यू विल फाइंड दैट जब आप मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है उस सक्सेस को अचीव करने के। जी, Thank you so much, sir. Thank you for your words of wisdom, sir. And it was a pleasure having you with us, sir. We wish you lots and lots of success ahead in all your future projects. And we just wish you keep making our Uttarakhand proud on national and international platforms, sir. Thank you so much, sir. thank you so much, Success Tale, Sugandha ma'am, Anjali, Nitesh, for inviting me, and it was pleasure talking to you. I wish you all the success and keep covering important personalities, and wish you all the success. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Thank you, Thank you sir. so much.